चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम के लिए उनको देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेव्स प्रोपगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इंटरफेरेंस ऑकर्स इन बोथ longitudinal waves and transverse waves. The angle between the wavefront and the wavefront is 90 degree. Wave and wavefront is 90 degree. When light enters from one medium to another medium, then which one is constant? Frequency remains constant in both medium. The wave nature of light is not proved by the following phenomena. Photoelectric effect is not proved by the wave nature of light. It is proved by the particle nature of light. Which of the following phenomena does not occur in sound waves or longitudinal waves? Polarization does not occur in longitudinal waves. The encroachment of light in geometrical shadow is called diffraction. A thin film appears colored in white light due to interference. The locus of particles oscillating in the same phase in wave propagation is called wavefront. The wavefront by a point source at definite distance is spherical. The wavefront of light source at infinity is plane wavefront. The energy redistribution due to superposition is called interference. A group of alternating bright and dark fringes is called interference pattern. The distance between successive bright or dark fringes is called fringe width. The width of bright and dark fringes in interference are equal. The diffraction of the width of the central maxima is twice of the width of the secondary maxima. Draw wavefront due to point source. This is a spherical wavefront. Next, draw wavefront due to point source at infinite distance. This is plane wavefront. What is the phase difference between 2 points of wavefront? It is 0. What type of sources are required for the interference of light? This is coherent sources. What should be the aperture of the slit to obtain the diffraction pattern of the order of wavelength? What is interference? Write its example. The change in intensity due to superposition of waves coming from two coherent sources are called interference. Example, colorful appearance of thin film of oil floating on water, soap bubble. What are conditions of coherent sources? The frequencies of waves should be same. The phase difference between the waves is zero or constant. डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिंज विड्थ। तो ये फ्रिंज विड्थ का फार्मूला है, इसके हिसाब से हमको फैक्टर्स लिखना है। बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, दैट इज द वेव लेंथ। फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। द विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज ग्रेटेस्ट फॉर रेड बिकॉज इट्स वेव लेंथ इज मोर एंड लीस्ट फॉर वायलेट। बीटा प्रोपोर्शनल डी, तो फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन। बीटा प्रोपोर्शनल 1 upon d, fringe width is inversely proportional to the distance of slits. On increasing or decreasing distance between the slits, fringe width increases or decreases inversely. What is diffraction? Write its conditions. The bending of light from sharp edges and encroachment of light in the geometrical shadow formed by the barrier is called diffraction. और यहाँ बैरियर की जगह पर ऑब्स्टिकल भी लिख सकते हैं। द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल शुड बी द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। ऑब्स्टिकल की साइज और जो वेवलेंथ की साइज हो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। राइट द मेन postulates of Huygens theory of secondary wavelets. Each point on wavefront acts as a source from which new waves are formed, which are called secondary wavelets. If the medium is homogeneous, then the secondary wavelets move with the velocity of the original wave. The common tangent plane drawn outwards to the secondary wavefront at any instant shows the position of new wavefront. तो इस तरह से उन्होंने तीन ये postulates दिए हैं। इसके बाद आपको ये फिगर भी ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, write the difference between multiple slit interference or pattern and single slit diffraction pattern. तो सेम है, राइट डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। चाहे ये आ जाए चाहे आ जाए, दोनों में यही करना है। इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन इसमें क्या लिखना? व्हेन टू वेव्स कमिंग फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेस सुपरइम्पोज देन इंटरफेरेंस पैटर्न इज फॉर्म्ड। व्हेन वेव्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ सोर्स superimposed, then diffraction pattern is formed. All bright fringes has same intensity. Central fringe has maximum intensity and decrease gradually in the secondary maxima. All dark and bright fringes has same fringe width.
Central maxima is twice of secondary maxima. All secondary maxima and minima have same fringe width. Dark and bright fringes have good contrast. Maxima and minima have not good contrast. Next is number of dark and bright fringes are more interference. Number of minima and maxima is less. Comparing to interference is less. Next question, explain the law of refraction, that is Snell's law from Huygens theory of secondary wavelets. तो यहाँ पर आपको एक फिगर ड्रॉ करना है। इस फिगर में आपको देख लेना है, ये जो है इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे है, और ये जो हम इसका परपेंडिकुलर खींचेंगे ये इंसिडेंट का वेव फ्रंट हो गया। यहाँ पर फर्स्ट मीडियम में जो वेलोसिटी है लाइट की, ये v1 है, और टाइम इंटरवल t में ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी बी सी इक्वल टू v1t। इन सेकेंड मीडिया जो वेलोसिटी है v2 है, और इसका जो टाइम इंटरवल है t है, इसकी डिस्टेंस जो हो जाएगी ae होगी। तो हम रिफ्रेक्टेड रे में एक जो है आर्क को कट करेंगे, उस पॉइंट को e मानेंगे, e को जो हम c से मीट कर देंगे, तो जो हमको लाइन मिलेगी वो रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट को शो करेगी। यही चीज़ हमको इनवर्स में लिखना है। तो देखिए, लेट ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट ऑन द सरफेस एम एन एट एंगल आई, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम इज v1, then the distance traveled in time t will be bc equal to v1t, and the speed of light in the second medium is v2t, then the distance traveled by the refracted ray a equal to v2t. Cut an arc from a to e and join e to c, which represents the position of refracted wavefront ce according to Huygens principle, which makes an angle r with the surface. तो इसमें जो है, जो भी फिगर में दिख रहा है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम कर यहाँ पर दो ट्रेंगल लेंगे, ए बी सी ट्रेंगल और ए सी ट्रेंगल, दोनों में एक में साइन आई निकालना है, साइन आर निकालना है। इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो इस वैल्यू को हम देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये आई है, तो यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बी सी, और जो इसका हाइपोटेनिस है ए सी, तो साइन आई इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू v1t है। इसी तरह से इन ट्रेंगल ए ई सी देख लेते हैं, तो यहाँ पर आर है, तो इसका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ई, और इसका जो हाइपोटेनिस है वो हो जाएगा ए सी। तो साइन आर इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपॉन ए सी, और इसका ए ई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, v2t, और यही वैल्यू को हमने यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए। इन ट्रेंगल ए बी सी साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बी सी की वैल्यू v1t है, और यहाँ पर इस तरह से ए ई सी में साइन आर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। इस तरह से ई सी की वैल्यू v2t है, फिगर से देख के आप लिख सकते हैं। अब हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड, तो यहाँ साइन आई हो जाएगा और इसके अपॉन में साइन आर हो जाएगा। यहाँ ये हो जाएगा v1t अपॉन ए सी, और एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं v2t अपॉन ए सी, तो इसमें सब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा v1 अपॉन v2, और जो v1 अपॉन v2 होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडिया, इट इज़ डिनोटेड बाय एन और म्यू। तो n2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, यही स्नेल्स का लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the distance between the slits is 0.28 millimeter and the screen distance is 1.4 meter. The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. Find the wavelength of light used. तो जो गिवन वैल्यू है पहले लिख लेंगे। ये स्लिट की डिस्टेंस को स्मॉल डी से लिखते हैं, 0.28 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को चेंज करेंगे तो 10⁻³ मीटर होगा, और यहाँ पर इस पॉइंट को रिप्लेस करेंगे तो 2 डिजिट रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये -3 का क्या हो गया, -5 हो गया जब हम इसका डेसिमल हटाएंगे। यहाँ पर जो स्क्रीन की डिस्टेंस है, यहाँ पर ये देख लीजिए 1.5 मीटर है, इसको हम लिख लिए। अब यहाँ पर जो फ्रिंजेस की डिस्टेंस है 1.2 सेंटीमीटर है, तो x इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 10⁻², ये मीटर में होगा, c नहीं लिखेंगे। इसके बाद ये नंबर कौन सा नंबर है, फोर्थ नंबर की फ्रिंज है, तो n इक्वल टू 4 हो गया। अब हमारे पास फार्मूला होता है इसके लिए x n लैम्डा d अपॉन डी। इस फार्मूले में लैम्डा की वैल्यू को हम निकाल लेंगे, सारा कुछ ट्रांसपोज कर देंगे। x की वैल्यू हम यहाँ पर ये लिख दिए हैं, x की वैल्यू देख लीजिए, ये x की वैल्यू हो गई, यहाँ पर ये x की वैल्यू लिख दी है। फिर इसके बाद स्मॉल डी की वैल्यू है, तो स्मॉल डी की वैल्यू ये वाली है, स्मॉल डी की वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद यहाँ n है, n का नंबर, n का मतलब 4 है, तो यहाँ 4 लिख दिए, और यहाँ पर 1.4 है इसका, इस कैपिटल डी का वैल्यू ये पुट कर देंगे। सारी को सॉल्व करेंगे तो सारा कुछ आ जाएगा 6 × 10⁻⁷। यदि हम 2 जीरो इसमें इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर हम 2 पावर इंक्रीज कर देंगे, -7 -9 हो जाएगा। अब इस -9 को हम जो है नैनो लिखते हैं तो 600 नैनोमीटर हो जाएगा। इस तरह से इसकी वेवलेंथ हो जाएगी, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनकी तैयारी आपको कर लेना है, और इसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तब एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ओके।